જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ્સ. હું અમિત પાંધી. I am Amit Pandey from BAPS Swaminarayan Vidya Mandir Gondal, welcoming you all in English medium lecture. Okay, so today what we will discuss is all India admission of engineering, particularly after 12th science, all India admissions. And in next lecture we will discuss Gujarat admissions as well. So this lecture is useful to running 12th student as well, and who has completed 12th. So all three of you, 10th completed, 11th completed and 12th completed, all three. Okay, so perhaps you know Asia number one institutes are IIT, that we have discussed, and you know as well IITs, they are far bigger institutions in Asia. They are bigger than in institutes of Japan or China or Korea or something, any other Asian countries. So Asia number one colleges are IITs. Okay, how many IIT colleges are there? Actually 23. So 23 IIT college, and if you want to take admission in those, either of them, then you have to crack JEE advanced, and on basis of all India rank you would get admission in that. Okay, and if you miss somehow IIT, if you score lower than that, then it is a JEE main score, paper 1 score, all India rank. More than 100 colleges we have in India. They give admission on the basis of JEE main, paper 1, and you have to appear JEE main first. That is first step. You have to score 80 PR, means starting 20 PR students, you have to be in there to get chance to appear in advance, to be eligible to write advanced exam. Okay, and in advanced exam, if you crack that with first 25,000 rank, then you can get admission in IIT. So this is about IIT and NIT. Not only that, we have many institutes which are giving admission on basis of these two exams. Today we will discuss those exams. Okay, and these exams, these institutes give admission via committee, JOSA committee. JO means Joint Seat Allocation Authority. So JOSA gives admission in IIT and NIT. Okay, again let me clear you. First you have to crack JEE main, and then if your PR is greater than 80, then you can appear in advance, and if you perform well in advance as well, then you will get admission in IIT. Suppose you don't score in advance that much, then on the basis of score of mains you will get admission in NIT. So if you want to take admission in advance IIT, then advance is the only parameter. They will not consider main score. And if you want to score NITs and triple ITs and all the other institutes, then they will consider only JEE main score, not advance. So very much clear that. And if you score well in both of them, advance and main, in that case you will have chance to get admission in IITs and NITs both. Okay, so this is the thing. मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपको आईआईटी में जाना है तो एडवांस ही काम आएगा. मेन का स्कोर बस 80 से ऊपर है, हो गया. उससे ऊपर कितना भी हो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा. और अगर आपको एडमिशन लेना है एनआईटी में, तो फिर आपका स्कोर मेन का ही कंसिडर किया जाएगा. अगर आप एडवांस में अच्छा नहीं कर पाए तो भी चलेगा. तो अगर दोनों में अच्छा कर पाए तो फिर दोनों ही इंस्टीट्यूट्स आपके लिए ओपन है. आपको सोचना है कहाँ पे जाना है. ओके, तो अब इसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि पैकेजेस क्या है. खास तो हर एक बंदा क्या सुनना चाहता है, जो हर वेबसाइट में आपको इतना इजीली नहीं अवेलेबल मिलेगा जितना मैं आज आपको बताने वाला हूँ. क्योंकि क्या रहता है, देखो कुछ वेबसाइट्स है, साक्षी ले लो, शिक्षा ले लो, अगला सेम ले लो,
फिर JEE इंजीनियरिंग प्रवेश ले लो, कैरियर 360 ले लो, ये सारी प्राइवेट वेबसाइट्स है, उनमें कुछ डेटा मिल जाएंगे आपको। और लेकिन इतने अच्छे से नहीं मिल पाएंगे जितना आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा ढूंढना पड़ता है डेटा, लेकिन वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स का मिल जाता है। तो पैकेज इज मेन टॉपिक टुडे। कितना कमाएंगे? 4 साल पढ़ तो लिया इंजीनियरिंग, फिर कमाएंगे कितना, वो आज का मेन टॉपिक है। ओके, तो पैकेजेस मीन्स सैलरी that we will discuss today of institutes of all over India. In particularly, they give admission in basis of JEE. Before starting this discussion, I want to clear you. We have good set in Gujarat to get admission in Gujarat State College Engineering colleges, but not each and every states of India has this type of entrance exam, separate entrance exam. They give admission on the basis of JEE main. There are 12 states in India, 12 states. In particularly, Delhi is the main amongst them. Look, these are the states which use JEE main 2020 score to make admissions. Okay, so Delhi, Punjab, these are two major states, and Haryana, Madhya Pradesh, Bihar, Nagaland, Jharkhand, Odisha, Rajasthan, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Chandigarh. These are the remaining. So Delhi, look, I have tick marked Delhi because Delhi is capital, Delhi is big city, capital of India, and we have very good colleges there, excellent colleges there. So we have chance to get admission. If you score well in JEE mains, then you will able to take admission in those institutions of Delhi and Punjab as well. So this is the thing. So JEE सिर्फ NIT के लिए ही नहीं है, इसके अलावा ये 12 स्टेट्स है जो उसके स्कोर के हिसाब से आपको एडमिशन देते हैं। तो वहाँ की अगर कोई अच्छी वाली कॉलेजेस का हमने लिस्ट बना के रखा है, तो वहाँ पे भी हम एडमिशन ले सकते हैं अगर JEE मेन में अच्छा स्कोर कर दिया तो ये बात है। ओके, सिर्फ ये 12 राज्य एडमिशन दे रहे हैं ऐसा नहीं है, और भी बातें करेंगे हम कि JEE का स्कोर और कौन कौन यूज़ कर रहा है एडमिशन के लिए, वो भी जानेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट से, दे आर IITs. ओके, सो how many IITs? As we discussed earlier, there are 23 IITs in India with 11,000 seats. Almost 11 lakh students appear every year to get admission in IIT. And 11 lakh 11,000 means 100:1. एक ही बच्चा, हर 100 बच्चे में से एक ही बच्चे का ये IIT वाला सपना कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन डिमोरलाइज मत हो, IIT के इक्वल पेमेंट्स वाली, इक्वल पैकेजेस वाली, इक्वल ही आपको सैलरी देने वाली इंस्टीट्यूट्स का भी हम आप डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ वीक वाली IITs से अच्छी वाली NITs और IIITs और GFTIs का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT हुआ, सिर्फ एडवांस हुआ तो ही आप कमाओगे, ऐसा नहीं है। तो पहले तो IITs की बात करते हैं, तो 11 लाख स्टूडेंट्स अपीयर इन JEE मेंस. Out of them, first 1.5 lakh appear in advance, and out of them, first 25,000 students are shortlisted for advanced admission, IIT admissions. So that is the thing. Now 11,000 seats we have. Again, JOSA is admission committee, and IITs give admission on the basis of advance. Now package of IITs. Look, highest package every year in IIT Bombay or IIT Delhi or IIT Madras, Kanpur, Kharagpur, Roorkee. These are the main IITs, older one and giant one, big sharks in education field, big volume, big package. Okay, number of offers by companies, number of companies, 200, 300, 500 companies come in campus interview. बच्चा पढ़ रहा है ना, वहाँ पे वहीं पे कंपनी आएगी,
वहीं पे सिलेक्ट करके ले जाएगी। 200 से 500 कंपनियां तक आती है, और अच्छी वाली कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज कही जाती है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादातर रहती है। फॉरेन कंपनीज भी आती है। अब देखो, फॉरेन कंपनी जो ऑफ़र करती है ना, जो बड़े वाले ऑफ़र करती है ना, वो कितने बड़े रहते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। कितने कितने बड़े रहेंगे? वो रहेंगे $15,000 महीना समझ लो। आप सोचेंगे $15,000 अ मंथ इज़ नथिंग। 15 to 17, सपोज $17,000 per month means $2,00,000 per year. Means dollar, it is dollar, $2,00,000. So if you multiply by 75, you will get 1.5 crore per annum. Get you? 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी पैकेजेस मिलती है डॉलर, यूरो या पाउंड वाले देशों में, वो वाले कंट्रीज में। वो सब लोग भी आते हैं कैंपस इंटरव्यू लेने। फॉरेन की कंपनियां भी आती है। सोच लो, अमेजोन आ गई, फ्लिपकार्ट आ गई, गूगल आ गई, ये तो मल्टीनेशनल है ना, वो तो कहीं भी पे पोस्टिंग देगी। वो आपको बताएगी कि अगर आपको वहाँ पे पोस्टिंग लेना है तो ये रहेगा हमारा ऑफर। तो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के पैकेजेस भी बंदे लेके जाते हैं। 5 एक बंदे तो रहते ही ऐसे। ये सब जो बिग IITs हमने बोली उसमें वो हो गए फॉरेन ऑफर्स। इंडियन ऑफर्स 30 लाख, 35 लाख इतना हो जाता है आराम से, मतलब महीने का 3 लाख अगर आपको भारत में रुकना है तो भी। और 21 साल में स्टार्टिंग सैलरी है, सोच लो बच्चे। हुई स्टार्टिंग सैलरी अगर कोई आपको बोलता है कि साल के आपको 36 लाख मिलेंगे, महीने के 3 लाख मिलेंगे, काफ़ी है भैया। 21 साल की उम्र में तो काफ़ी है। ये तो स्टार्टिंग सैलरी है। वहाँ पे जाके आप काम करोगे, प्रमोशन लोगे और डेवलप होगे तो सैलरी तो बढ़ने वाला है। तो अगर इंडिया में भी अगर आप सोचो तो वो पैकेजेस अच्छे ही है, काफ़ी अच्छे हैं। तो वो IITs, तो जो वो IITs है उसमें से जो 23 IITs है उसके मैंने पैकेज लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये आपको LPA पढ़ने मिल जाएगा, लाख पर एनम। एनम मतलब सालाना। साल में कितना पैकेज ऑफर दे रही है कंपनियां? देखो, अब IIT बॉम्बे है, उसका 10.5 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज का मतलब क्या हो गया? जिसको भी पैकेज मिला है वो सबको लाइन में खड़ा कर दो, छोटे से बड़े तरफ पैकेज। छोटा पैकेज 5 लाख वाला, बड़ा पैकेज 1.25 करोड़ वाला, ऐसे ही लाइन में इकट्ठा खड़े कर। सबसे बीच वाला जो बंदा है ना, वो 10.5 लाख महीने का सालाना कमा लेगा। तो ये बीच वाला है, वो देखो। उससे अगर आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लोगे वहाँ पे जाके, और मिड से अगर ऊपर भी रहे अपने क्लास में, तो फिर ये पैकेज आप ऊपर ही सोच सकते हो। और एक बड़ी बात, कंप्यूटर के पैकेज सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो हमने बोला 20-30 के ऊपर वाले जो पैकेजेस रहते हैं ना, वो सारे के सारे कंप्यूटर के ही रहते हैं। मैकेनिक्स सिविल में उतने बड़े, उतने ज़्यादा पैकेजेस नहीं हो पाते। तो अगर आप प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी ही जाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा इसमें ही कमाना चाहते हैं, तो फिर आई वुड रिकमेंड कंप्यूटर। एंड लुक, दीज आर द कट ऑफ्स। कट ऑफ्स मतलब क्या हो गया? इंडिया में जो बच्चे हैं 25,000, जो पहले 25,000 बच्चे हैं उसको रैंक दिया जाएगा, ऑल इंडिया रैंक। यूनिक रहेगा वो कोई भी बच्चों का। तो पहले नंबर का जो भारत का बच्चा है वो कहाँ पे गया? 2018 के डिजिट्स है, वो गया IIT बॉम्बे में। ओके, और कंप्यूटर कहाँ पे फुल हुई? IIT बॉम्बे वाली कंप्यूटर 59 रैंक में ख़त्म हो गई। मतलब अगर आपका नंबर 60 है, 60, तो आपको IIT बॉम्बे का कंप्यूटर नहीं मिल पाएगा। या फिर ब्रांच बदल लो, या फिर कंप्यूटर में ही जाना है तो फिर कॉलेज बदल लो। बॉम्बे नहीं मिल पा रही है तो दिल्ली मद्रास ट्राई कीजिए। तो ऐसा हो गया। तो ये हमारे कट ऑफ नंबर्स है, ऑल इंडिया रैंक है। सपोज आपका नंबर 60 से 100 तक है तो आप IIT दिल्ली कंप्यूटर में जा सकते हो। 101 अगर आपका नंबर है तो आपके लिए बॉम्बे और दिल्ली नहीं मिल पाएगी, मद्रास और नीचे की सारी मिल पाएगी जिसमें भी आपको जाना है। तो इस हिसाब से ये बच्चों ने डिसाइड किए हुए रैंक है। बच्चे मतलब ये काफ़ी ब्रिलियंट वाले बच्चे हैं, एशिया के सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं, सोच लो। तो वो कितना सोचते होंगे, कितना सर्वे करते होंगे, कितना सारा उसका रिसर्च रहेगा। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ ऑर्डर है।
ये ऑर्डर कुछ अलग दिख रहा है, ये ऑर्डर कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बच्चों ने तो तीसरे नंबर पे डाली है, ऐसा क्यों है? सुनो, ये जो है निर्फ है, निर्फ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमिंग, वो वाले जो रैंक है ना, वो हमारी भारत सरकार देती है, MHRD देती है, और उसमें वो इंफ्रा देखते हैं कि किसका इंफ्रा बढ़िया है, उसके 20 मार्क जोड़ दिए, किसके बच्चे PhD ज़्यादा कर रहे हैं 30 जोड़। यार कौन PhD करेगा, क्यों करेगा? अगर BTech से अगर आप लाखों करोड़ों में कमा रहे हो और ME MTech के बाद इनकम कम होनी है नहीं है, तो फिर कौन करेगा? वो सही बात है। वो इन सब इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे, आज के लेक्चर में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स का हम डिस्कशन करेंगे, आधे से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसी रहेगी जिसमें ME MTech का पैकेज कम मिलेगा आपको BTech से। BTech में जो बच्चे कैंपस में नहीं जा पाते, कैंपस इंटरव्यू में नहीं जा पाते, कंपनीज उसको सिलेक्ट करके नहीं जाती, छोड़ के जाती है, वो वाले बच्चे ME MTech करने को रुकते हैं, और वो उसमें टैलेंट उतना नहीं है, नहीं तो वो चले गए होते कंपनीज में BTech के हिसाब से। ओके, तो उसको ME MTech करने को रुकना पड़ा 2 साल और, तो उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा मोस्टली, तो उसका पैकेज थोड़ा कम रहेगा। फिर से बताता हूँ कि पैकेज यहाँ पे क्या रहता है, ME मास्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। बैचलर्स मतलब 4 साल पढ़ लिया, ठीक है, चलो अब 2 साल पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंपनीज आपको BE के हिसाब से भी अच्छे से अच्छा पैकेज देने ही वाली है, ऐसा है। तो BE काफ़ी है ME के लिए, PhD के लिए नहीं जाना। और ये निर्फ वाले क्या करते हैं, वो गिनते हैं कितने बंदे PhD में गए। अरे भाई क्यों जाएंगे बंदे PhD में, तो उसके हिसाब से वो लोग उसके भी मार्क रखे हुए हैं। प्रोफेसर्स कितना पढ़े हुए हैं, अरे भाई प्रोफेसर में 1 डिग्री कम भी हुई लेकिन पढ़ाता अच्छा है, तो वो बढ़िया है। तो निर्फ वाले अपनी जगह पर बहुत ही सही है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही रैंक किए जाने चाहिए, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास बच्चा था, पुअर बच्चा था अपनी बचपन में, तो मिडिल क्लास बच्चे जो है वो क्या देखते हैं, पैकेज देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कैंपस इंटरव्यू वाली, और सिटी के हिसाब से भी। बॉम्बे सोच लो, वो हमारा इकोनॉमिकल कैपिटल है भारत का, वो हम जानते हैं सब। कैपिटल दिल्ली है वो हम जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो पैसा, सबसे बड़ी कंपनियाँ कहाँ पे है, बॉम्बे में है। तो बच्चा वो सोच के भी बॉम्बे में जाता है। तो IIT बॉम्बे काफ़ी सारे पैरामीटर्स से ये जो रैंकर्स रहते हैं ये फर्स्ट नंबर पे डालते हैं। ये जो कट ऑफ्स है ना, उसके हिसाब से ये नाम लिखे रहे हैं हमने। ओके, तो IIT बॉम्बे फर्स्ट है, IIT दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, ये सारी IITs है जो बड़ी वाली IITs है। उनका पैकेज 10.5 लाख, 14 लाख, 12.5, 14, 12.5, 13, ऐसे सब अलग अलग लाख के पैकेज है। 1 लाख से ज़्यादा ही हो गया। फिर से बता रहा हूँ, ये मीडियन पैकेज है, मतलब इससे कम पाने वाले बच्चे भी है और ज़्यादा पाने वाले भी बच्चे हैं। ठीक से पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा ही पाओगे, ठीक से ही पढ़ना है, टॉप बॉप करने की कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ पे जाओ थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लो, ठीक बस है। ओके, इस IITs में एक नाम हमारी IIT का भी है, वो है IIT गांधीनगर। 23 IITs में से 11th नंबर पर पैक हुआ उसका एडमिशन, गांधीनगर IIT का। तो गांधीनगर वाली IIT भी अच्छी है, उसका 7.25 लाख के आसपास पैकेज है। देखो ये पैकेज कम क्यों दिख रहा है, सबका पैकेज कम दिख रहा है। हम तो 20-30 लाख तो कम से कम सुनना चाहते थे, ये तो सारे वाले कम है, ऐसा क्यों? भाई सिविल में नहीं करनी है किसी को जॉब, उसको अपना कंस्ट्रक्शन का करना है। मैकेनिक में उसको अपनी फैक्ट्री डालनी है, उसको जॉब नहीं करनी है। या फिर कंपनीज जो है बहुत बड़े वाले पैकेज किस में देती है, कंप्यूटर में। तो जो कंप्यूटर है ना भैया, वो बहुत बड़ा पैकेज। कोई कंप्यूटर वाली स्पेशल कॉलेज हम देखेंगे ना जब IIIT, तो उसके पैकेज काफ़ी बढ़िया बढ़िया दिखेंगे आपको। रीज़न वही है कि सिर्फ कंप्यूटर है वहाँ पे, IT है, तो कंप्यूटर और IT के पैकेज सबसे ज़्यादा रहते हैं। सिविल मैकेनिक के थोड़े कम रहते हैं, वो सब गवर्नमेंट ब्रांचें कहलाती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब करना है तो वो सब ब्रांच में जाओ। प्राइवेट में ये सब प्राइवेट जो कंपनीज है उसके डिजिट्स है, वो कितने लाख दे रही है। ये प्राइवेट वाली कॉलेजेस, ये प्राइवेट वाली कंपनीज का जो पैकेज है वो है। तो मैकेनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल जहाँ पे चल रहा है जिस कॉलेज में, उसका एवरेज पैकेज नीचे जाएगा।
क्योंकि उस बंदों को सबको नौकरी नहीं मिलती, सबको अच्छे अच्छे पैकेज नहीं मिलते प्राइवेट में, ठीक ठाक लो पैकेज मिलते हैं, कंप्यूटर में अप पैकेज रहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो ना भैया, तो ये सारे के सारे पैकेज डबल कर लो, डबल, यस डबल कर लो सारे पैकेज, महीने का 2 लाख आसानी से, बिल्कुल आसानी से, यस, एट द एज ऑफ 21 और 22, जब आप 12 कंप्लीट करो, 4 ईयर्स ये कंप्लीट करो, बाद की बात है। ओके, तो ये सारी IITs हो गई। IITs में सबके रैंक नहीं दिए हैं नीरफ ने, ये सब क्लोजिंग के हिसाब से, जम्मू लास्ट में है और ये सब IITs हमारी 23। अब IITs अच्छी वाली नहीं मिल पा रही है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वो अच्छी वाली NITs की तरफ जाते हैं, नीचे वाली IIT नहीं लेते, उसके बदले अच्छी वाली NIT पे फोकस करते हैं। तो अब NIT का डिस्कशन करते हैं, चलो भैया। NIT तो कितनी NITs है भारत में? भारत में अब 31 NITs है, 17,000 से ज़्यादा सीट्स है। So if you want to get admission in these NITs, then only JEE main score is important, not JEE advance. So अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाता, यहाँ वाली IITs नहीं लेना चाहता, तो वो जाएगा NITs की तरफ। NITs 31 है, उसमें से सबसे जो अच्छी वाली है, सबसे ज़्यादा जो पैकेज वाली NIT है, वो है भैया तिरुचिरापल्ली की, तमिलनाडु की है ये NIT। उसका 7.5 लाख का पर एनम मतलब सालाना पैकेज, एवरेज पैकेज, अगेन टेलिंग यू। अगर कंप्यूटर में जा रहे हो तो डबल कर लो एवरेज पैकेज, और अगर थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हो तो उससे भी ज़्यादा कर लो पैकेज। सारी कॉलेज में ये तो रूल रहेगा आज के पूरे लेक्चर में। ओके, वो सारी NITs में हमारी गुजरात की, जैसे एक IIT हो गई गुजरात में, वैसे एक NIT भी है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की है। उसमें 6.25 लाख, दोनों का 6.25 लाख ही है, IIT गांधीनगर, NIT सूरत। अगेन टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ सम ब्रांचेस in which no such big package is there, that's why average comes low. If you opt for computer, then this package will be doubled itself. And if you learn, if you educate yourself in those colleges somewhat properly, then again you can add some lakh in this package. Okay, so out of those 31 NITs, our SVNIT is ranked 9th in NITs, 9th. So it is good for us, it is pride thing for us. And NIT दिल्ली, हम उससे भी आगे है। गुजरात वाली जो NIT है ना, वो दिल्ली वाली NIT से भी अच्छी है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, रैंकिंग बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, रैंकिंग बोल रही है। ओके, तो ये हो गए सब। हम हमारी NIT है तो उसका थोड़ा फ़ायदा भी है, होम स्टेट कोटा है वहाँ पे आधा, 50% सीट्स गुजरात रिजर्व्ड भरते हैं भले JEE मेन के स्कोर के हिसाब से, लेकिन गुजरात के स्टूडेंट ही जा पाते हैं उसमें, और आधी ऑल इंडिया। ऐसा IITs और IIITs में नहीं होता, सिर्फ ये NITs में ऐसा होता है। ये सारे एडमिशन एडवांस के हैं, पूरे इंडिया में है, कोई होम स्टेट कोटा का कोई बेनिफिट नहीं है। ये वाली जो कॉलेजेस है, ये इसमें सूरत वाली जो है, उसमें एक होम स्टेट का हमको बेनिफिट है। उस सीट के एडमिशन थोड़े 2-3% अगर आपको कम मिले हैं मार्क, तो भी वहाँ पे एडमिशन इंडिया लेवल का हो जाएगा आपका। ओके, इसमें एक में एक ना बेनिफिट है हमारे पास। अब NIT के बाद में हम बात दूसरी कॉलेजेस की करते हैं। GFTIs हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी, पहले हमारी जो बड़े पैकेज वाली बातें है ना, वो हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। सबसे बड़े पैकेज, सबसे भैया सबसे बड़े पैकेज अब आप देखने वाले हो, वो है IIITs। IIITs 23 थी, अब 2 और ऐड हो गई नई खुल के, ये 4,500 के आसपास सीट हो चुकी है। और ये जो मैंने +4 जोड़ी हुई है ना, उसका नाम सिर्फ IIIT है, लेकिन वो अलग है, इस ग्रुप की नहीं है। समझाता हूँ आपको। ये हो गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंडियन है, ये इंटरनेशनल है। ये सारी ग्रुप में इकट्ठा एक ही मैनेजमेंट है, एक ही गवर्नमेंट, एक ही तरीके से, जैसे IITs में सब कुछ कुछ रूल्स एक से रहते हैं, वैसे ये 25 में एक से रूल्स मिलेंगे आपको थोड़े बहुत। ये 4 ऑटोनोमस है, अलग है, लेकिन पैकेज उसके ज़्यादा है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। चलो IIITs डिस्कस करते हैं। वो सारी ITs है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर ही चलते हैं वहाँ पे कोर्स, तो पैकेज तो वहाँ पे बढ़िया ही मिलेगा, क्योंकि पैकेज बिगाड़ने वाली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है ही नहीं वहाँ पे उस कॉलेज में।
तो इस कॉलेज का पैकेज आपको बढ़िया देखने मिलेगा। पहले मैं ये 4 IITs की बात करने वाला हूँ। ये कहलाती है ट्रिपल IITs, ये IITs और ये ट्रिपल IITs। ओके, तो ट्रिपल IITs जो है वो एडमिशन देती है JEE मेन के ऊपर। अब सुनो, उसमें जो हैदराबाद वाली है ना, ट्रिपल IIT हैदराबाद, वो नंबर 1 है भैया, नंबर 1। उसका 21 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज है, एवरेज। और बड़े वाले पैकेज यहाँ पे भी करोड़ तक जाते हैं। इंडियन का पैकेज 30-40 लाख तक, और फॉरेन के पैकेज करोड़ से ऊपर तक जाते हैं ये ट्रिपल IIT हैदराबाद में। तो वो एक देख लो कि अगर आप कंप्यूटर IIT सिलेक्ट कर रहे हो या फिर ट्रिपल IIT हैदराबाद सिलेक्ट कर रहे हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। मैं तो बोलूँगा ये स्पेशलाइज कॉलेज हो जाती है कंप्यूटर के लिए। ओके, दूसरी है ट्रिपल IIT बेंगलोर उस लिस्ट में, जो 13 लाख का पैकेज देती है और ड्यूअल डिग्री है। ड्यूअल डिग्री का क्या मतलब हुआ, पहले वो आपको 4 साल पढ़ाएंगे बीटेक, और बाद में 2 साल पढ़ाएंगे एमटेक। कंटिन्यू आपका एडमिशन 12th के बाद हो गया, कंटिन्यू 6 साल वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो ड्यूअल डिग्री कहलाती है। डबल डिग्री मिलेगी आपको वहाँ पे, और वहाँ पे भी 13 लाख का पैकेज है, तो अच्छा पैकेज है। अगर कोई बंदा किस कारणवश 4 साल ख़त्म करके डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो भी वो बीटेक की डिग्री तो लेके ही निकलेगा वहाँ से, और तो भी अच्छा ही पैकेज वो पाएगा। ट्रिपल IIT दिल्ली, इसका नाम अलग है। ये वाली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स कहलाती है ऑफ IT, ये कहलाती है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ IT, दिल्ली में है। 12 लाख का उसका सालाना, एनम मतलब सालाना उसका पैकेज है, महीने का 1 लाख हो गया। और भुवनेश्वर ट्रिपल IIT इस लिस्ट में आती है, वो है BBSR कहलाती है, ट्रिपल IIT BBSR भुवनेश्वर। उसका तो कम पैकेज है, 6 लाख ही है, 50,000 अ मंथ हो गया, तो वो कम वाला है। ये 4 ऑटोनोमस है। ये जो गवर्नमेंट ने जो वो ट्रिपल IITs सेट करके रखी था फॉर्मेट, ये वो वाली नहीं है, वो ऑटोनोमस है। अच्छी है, गवर्नमेंट अप्रूव है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एडमिशन ले ही सकते हैं। मैं तो बोलूँगा इससे बढ़िया वाली है ये वाली, एडमिशन आराम से ले सकते हैं आप, कोई झिझक के बगैर। ओके, अब ये जो 23 या फिर नई जो ओपन हुई है उसके हिसाब से 25 जो ट्रिपल IITs है, उसका डिस्कशन करें तो उसमें इलाहाबाद का पैकेज नंबर 1 पे आता है, 15 लाख। फिर ग्वालियर का पैकेज, उसमें ड्यूअल डिग्री है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, 6 साल पढ़ना पड़ेगा, 10.5 लाख का पैकेज है उसका। जबलपुर और कांचीपुरम की जो ट्रिपल IITs है उसके 7.5 और 5 लाख के ईयरली पैकेज हो गए। अब ये जो ट्रिपल IITs है ना, उसमें भी गुजरात की एक ट्रिपल IIT है, वो वाली 2 है एक्चुअली, बड़ौदा और सूरत। अब बड़ौदा 2013 में स्टार्ट हुई, अभी उसके पास खुद का बिल्डिंग नहीं है, वो लोग गांधीनगर में बैठते हैं। यस, गांधीनगर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें बैठते हैं। प्रोफेसर्स भी अभी सारे अपॉइंट नहीं हो पाए, बिल्डिंग भी नहीं हो पाया, फिर भी देखो बच्चों 11 लाख का पैकेज निकाल के ये लोग दिखाए हैं लास्ट ईयर, मीडियन वाला पैकेज। वेबसाइट में देख सकते हैं आप ये सब कुछ डेटा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में सब चेक करना। अगर कुछ गलत भी हो ना भैया, तो मेरे को जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें व्हाट्सअप करना। अगर मैंने डेटा पूरा एक दिन बैठा था और पूरा सर्च किया, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ निकल आए गलत तो मुझे इन्फॉर्म करना। मैंने पूरा टेक केयर किया है कि डेटा सही से सही जा सके। ओके, ट्रिपल IIT सूरत वो नहीं है, उसका भी एक भी बैच बाहर नहीं पड़ा है, तो उसका तो हम पैकेज लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई बैच अभी पढ़ के बाहर ही नहीं है, पढ़ाई चल रही है पहले बैच की। और वो जो बैठती है वो बैठती है सूरत के NIT जो है ना, SVNIT हमारी, उसमें बैठती है। उसके पास की भी खुद का बिल्डिंग, खुद के प्रोफेसर्स नहीं है। तो ये 23 ऐसी ट्रिपल IITs है, उसमें से कुछ कुछ काफ़ी अच्छी है, पैकेज के हिसाब से ये अच्छी है। अगर इंफ्रा के हिसाब से मार्क देने जाओगे तो काफ़ी डाउन होगा, पैकेज के हिसाब से काफ़ी अप होगा। तो ये हो गई ट्रिपल IITs जो मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो मेन में आपको एडवांस का पैकेज देती है भैया। ट्रिपल IIT हैदराबाद में आप जा रहे हो ना, तो मेन का स्कोर लगेगा और पैकेज आपको एडवांस वाली मिलेगी। तो इसके लिए मुझे ट्रिपल IIT हैदराबाद और वो कुछ वाली है इलाहाबाद और बेंगलोर, दिल्ली, वो सब अट्रैक्ट करती है। बड़ौदा भी मैं देखूंगा कैसा है कॉलेज, अगर वो अच्छा है तो वो तो कम स्कोर में मिल जाता है भैया, कम स्कोर में। तो थोड़ा अगर कम स्कोर है ना और आपको कमाना ही कमाना है, वही आपका मोटिव है, आपको इंफ्रा से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो देन आई वुड रिकमेंड ट्रिपल IIT बड़ौदा।
ओके, नाउ GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, पहले 20 थी, अब इसमें भी 3 जोड़ लो, नई वाली जो ओपन हुई रायपुर में, नया रायपुर में एक ओपन हुई है, छत्तीसगढ़ में, ऐसी कुछ कुछ है जो नई ओपन हुई है, वो जोड़ लो तो वहाँ पे 23 GFTIs आपको मिल जाएगी। ये सब एडमिशन दे रहे हैं जोसा के ऊपर से, या 100 कॉलेज हो गई देखो ये। और भी मैं बोलने वाला हूँ, अभी एक पेज बाकी है, जो कुछ कुछ अलग से इंस्टीट्यूट है जो जोसा नहीं एडमिशन दे रही, खुद कॉलेज ही दे रहा है, लेकिन JEE मेन के हिसाब से दे रहा है, वो वाली कॉलेज भी डिस्कस करेंगे। पहले ये GFTIs जो है, इसमें एक हमारे गुजरात में है IIT राम, रिसर्च मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टीट्यूट्स है, वो अहमदाबाद में है, अच्छा पैकेज है, अच्छा प्लेसमेंट है, IIT राम। ओके, एक यहाँ पे गुजरात में है। सब उसमें ज़्यादा कुछ अच्छी कॉलेजेस नहीं मिलेगी आपको, एक है, एक उसमें बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जो बिरला कॉलेज कहलाती है, मेसरा में है, वो वाली जो कॉलेज है रांची में, उसका 10 लाख का पैकेज है, वो GFTIs में सबसे ऊपर है। सेंट्रली फंडेड भी कहलाती है, कई लोग उसे गवर्नमेंट फंडेड भी कहते हैं, सेंट्रली फंडेड भी कहते हैं। उसमें जो इन्हें टिक करके रखा है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो खैर बीट्स नहीं है, नाम मिलता जुलता है लेकिन वो नहीं है, ये है बीट मेसरा रांची, जिसका 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज। तो वो तो अच्छी कॉलेज हो गई अगर 10 लाख दे रहे हैं तो ये जो GFTIs है उसमें से मैंने तो यही एक ही पसंद की है, और लोकल कोटा में हमको एडमिशन मिल जाता है, उसके हिसाब से मैंने ये अहमदाबाद वाली भी सिलेक्ट करके रखी है, IIT अहमदाबाद। हम गुजरात की लोग जो है उसको 4.5 लाख ये मीडियन पैकेज है। अगेन सारी ब्रांच को मिला के है, कंप्यूटर का है तो 7 लाख से ऊपर समझ लो, तो अच्छा पैकेज है। जैसे स्कोर आपका थोड़ा डाउन चलता जाएगा, फिर बाद में आपका डिसीजन बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। कम स्कोर वाले काफ़ी बच्चों ने ये नाम पहली बार सुना है, वहाँ पे एडमिशन मिल पाती उसको, लेकिन मालूम ही नहीं है। यहाँ पे एडमिशन मिल पाती लेकिन मालूम ही नहीं है। अब बस निरमा है, वो सब जो 3-4 कॉलेजेस है उसका नाम, वो अच्छी है, निरमा भी अच्छी है, लेकिन वो 3-4 फिक्स रटाई कॉलेज गुजराती लोग जानते हैं। ये सब कॉलेजेस पॉसिबल है, अच्छे पैकेज दे रही है, निरमा से भी अच्छे पैकेज दे रही है, लेकिन नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने, तो फिर कैसे एडमिशन हो पाएगा। इसलिए ये सारे लेक्चर मुझे बहुत ही ज़रूरी लगे कि मैं पहले ये सब इन्फॉर्मेशन दो, और ये वीडियो फॉर्म में है तो आप रिपीट भी देख सकते हो, आप उसमें से कुछ डेटा लिख भी सकते हो रिपीट करके, पॉज करके वीडियो को। तो इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हूँ आपके लिए। तो ये जो मेसरा रांची की 10 लाख वाली जो पैकेज देने वाली कॉलेज है, ये अच्छी कॉलेज है। फिर गुजरात में ये है अहमदाबाद में, ये वाली हमारी IIT राम। फिर 4-5 लाख वाली ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, ये हो गई। फिर ये शिवपुर बंगाल में एक 4 लाख वाली है। फिर फाउंड्री फोर्ज वाली, मतलब मेटल के साथ सारा काम रहता है, वो रांची में है, पैकेज थोड़ा कम है लेकिन 100% प्लेसमेंट वाली है। इसमें क्या क्या रहता है, कुछ 80 कुछ 90% प्लेसमेंट देते हैं, ये 100% प्लेसमेंट वाली है, पैकेज कम है लेकिन 100% है। फिर गुरु घासीदास है, बिलासपुर में हो गई। ऐसी कुछ कुछ कॉलेजेस है जो 4 लाख के आसपास पैकेज है उसका। वो जो स्पा कॉलेजेस कहलाती है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट वाली, ये 3 भोपाल, न्यू दिल्ली, विजयवाड़ा, ये सब, ये लेकिन सारी का पैकेज 4 लाख के आसपास वाला पैकेज है। तो ये उतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही है मुझे ये रांची वाली एक अट्रैक्ट करके जा रही है। अगर फैमिली बिजनेस मेरा मेटल वाला है तो वही ये सोचूंगा, नहीं तो ये नहीं। ये अहमदाबाद वाली, हम लोकल है तो अहमदाबाद का सोचेंगे, संडे को घर पे आना हो तो आ सकते हैं, इसलिए ये कॉलेज भी मैं रेकमेंड करूँगा, अच्छी वाली है, अच्छा पैकेज है, काफ़ी अच्छी है। तो GFTIs में ये वाली मेरी सिलेक्शंस है। ओके, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं भी समझ रहा हूँ। 1 वे लेक्चर होता है ना जो, उसमें हम कॉमेडी, क्वेश्चनरी कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो वो वीडियो लेक्चर की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाती हैं, वो लाइव लेक्चर जितना नहीं हो पाता। ओके, इन सब की फ़ीस का बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो IITs की फ़ीस है वो आपकी इनकम के हिसाब से, अगर आपकी इनकम फैमिली की कम है, अगर फुल है तो 10 लाख का पूरा IIT हो गया, पूरा 4 साल वाला पूरी फीस है 10 लाख के आसपास। अगर आपकी इनकम कम है फैमिली की तो ये फिगर
6 लाख हो जाएगा, और कम है तो इस हिसाब से फी स्ट्रक्चर है इसका। और लोन भी मिल जाती है, एजुकेशन लोन मिल जाती है। अगर ये 10 लाख भी नहीं भर पाते, 5 लाख भी नहीं भर पाते, तो एजुकेशन लोन्स भी है। और 5 साल 4 साल में भरनी है ना ये फीस। और एजुकेशन लोन भी है। अगर लोन है तो फीस का तो टेंशन ही गया। लोन मिलती है और वो उसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट तब नहीं होता जब आप लोन लेते हो, जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करोगे ना, तब। तो एजुकेशन लोन का मतलब ही यही है कि बैंक जानती है कि पैसा डूबेगा नहीं, ये कॉलेज अच्छी है, इस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा बाहर निकल के आराम से हमारा लोन चुकता कर पाएगा, आराम से। तो एजुकेशन लोन है। अगर 10 लाख है तो सामने एजुकेशन लोन भी है। NITs 5 लाख के आसपास पूरा 4 साल का पढ़ाई। GFTS का पूरा पढ़ाई 3 लाख के आसपास हो गया, पूरा 4 साल का पढ़ाई। और IIITs ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है, कई रीजंस है इसके। एक तो मेरा कंप्यूटर फेवरेट है, इसलिए मुझे आता नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश रह गई है कंप्यूटर अच्छा पैकेज देते हैं, ज़्यादा पैकेज देते हैं, इसलिए ये कॉलेजेस अच्छी है। 5 लाख में तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। और मेन के मेरिट में एडवांस वाला हमको पैकेज देते हैं, तो ये अच्छी वाली बातें हैं सारी इसकी IIITs की। अब लास्ट 5 मिनट से हम डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे प्योर पढ़ना चाहते हैं ना, प्योर मतलब क्या, ये इंजीनियर जो न्यूटन का जो लॉ है 3rd, वो अगर आपने पढ़ लिया तो वो है प्योर। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो रॉकेट के लिए तो वो हो गया इंजीनियरिंग, वो हो गई टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग है वो अप्लाइड कहलाती है, और ये जो है वो प्योर कहलाते हैं। जो प्योर इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आपको BSc MSc PhD करना है, वो नंबर 1 है उसमें बेंगलुरु वाला IISc, जिसका 13 लाख का एवरेज पैकेज है। फिर हो गया ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, जिसमें स्टेट और मैथ्स का पढ़ाई होता है। 19 लाख का प्लेसमेंट है एवरेज भैया। उसमें ओलंपियाड और उसकी खुद की एग्ज़ाम के हिसाब से एडमिशन होता है। इसमें 4 तरीके से एडमिशन हो सकता है अगर आप प्योर में पढ़ना चाहते हो और आप इतने बड़े 100 टॉप 100 में आने वाले बच्चे हैं इंडिया के। तो इसका डिस्कशन हम अलग से करेंगे, उसके साथ पर्सनली 1-to-1 डिस्कशन करेंगे अगर ऐसा कोई बच्चा है तो। ओके, बाकी ये जनरल नहीं है, ये भी जनरल नहीं है, ये प्योर पढ़ाने वाली 7 इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन उसके प्लेसमेंट्स नहीं है। उसमें बच्चों को खुद को पढ़ाना है या ऐसा कुछ करना है प्राइवेट में जाके या फिर गवर्नमेंट में जाके, तो ये वाली बढ़िया वाली है। ये एक अच्छी है जो एडवांस से एडमिशन देने वाली IIST का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है ये। इसमें 9 लाख का पैकेज है, 2 ही कोर्स है उसमें। और अभी सीट बढ़ी है, इसलिए मैंने 100 ड्रॉप कर दिया हुआ है, थोड़ी सीट बढ़ी है इस साल इसमें। और भी थोड़ी है राजीव गांधी पेट्रोलियम वाली, लेकिन उसका 6 लाख का ही है पैकेज, और वो सिर्फ पेट्रोलियम केमिकल ही पढ़ाते हैं, तो और एडवांस में जाती है और उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है अमेठी में पढ़ने के लिए। तो वो एक मैंने कंसिडर ज़्यादा नहीं की हुई है, 100 के आसपास सीट वाली। ये फिर से ये वाली कॉलेजेस है जो JEE मेन का मेरिट यूज़ करती है। जोसा में एडमिशन नहीं होता उसका एडमिशन इंस्टीट्यूशन का अलग से रहता है, लेकिन जो मेरिट है वो यूज़ करती है JEE मेन का। ये 3 के अलावा ये 3 की खुद की एग्ज़ाम है, बीट सेट, VIEEE और SRM JEE। लेकिन ये तीनों का जो लेवल है ना भैया, वो अगर आप JEE मेन के अच्छा स्कोर कर लेते हो तो उसमें भी डेफिनेटली अच्छा करोगे। कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1-आध हफ्ता उसकी अलग स्पेशल बुक लेके बैठ जाओ भैया तो हो जाएगा। अगर आप JEE में ब्रिलियंट है तो ये वाली एग्ज़ाम कुछ अलग सिलेबस वाली नहीं है, एग्ज़ाम अलग है, लेकिन सिलेबस 10% से ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये भी अच्छी वाली कॉलेज है। इसमें बीट्स पिल्लानी राजस्थान सबसे ऊपर आती है। 4 कैंपस है, 3 इंडिया में, एक बाहर है दुबई में। 11 लाख का इसका एवरेज पैकेज है। कंप्यूटर का पैकेज तो इसका काफ़ी ज़्यादा है, 18-20 लाख के आसपास है कंप्यूटर का पैकेज। फिर ये जामिया जो नई दिल्ली वाली 8 लाख वाली, नेताजी सुभाष दिल्ली वाली जो कॉलेज है ये भी 8 लाख के आसपास। DTU का बड़ा नाम है, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसका बड़ा नाम है, ये 7 लाख के आसपास पैकेज देती है। चंडीगढ़ की जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका 6.5 लाख पैकेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वाला जो है मुंबई वाला,
ये देखो मुंबई वाली कॉलेजेस जो रहती है ना, उसका मुंबई का खुद का, जैसे हमारा गुजसेट है, उसके मुंबई के पास उसका खुद का MHCAT है, तो कुछ सीट है उससे भरते हैं, कुछ सीट है JEE से भरते हैं। तो ICT में अगर आपको जाना है केमिकल या पेट्रोलियम में, आपको केमिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये 6 लाख के आसपास पैकेज देने वाली एक कॉलेज यहाँ पे है। फिर दिल्ली में वो जो DTU है, उसमें इंदिरा गांधी फॉर वुमेन्स DTU भी है, तो वो गर्ल्स के लिए स्पेशल हो गया। वहाँ पे 5.5 लाख का पैकेज है, अच्छा वाला पैकेज है। VIT SRM अलग एग्ज़ाम रहती है, उसका 5 और 3.5 लाख का पैकेज है। अन्ना जो साउथ में चेन्नई में, वो 5 लाख वाली है। SPIT जो मुंबई में है, उसके 4.5 लाख का पैकेज है। इसके अलावा अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लास्ट वाला पेज है मेरे पास, ये 23 कॉलेज जिसका लिस्ट मैंने निकाला है कैरियर 360 में से, लेकिन उसमें SRM का खुद का एग्ज़ाम है, वो मैंने निकाल दी है। बाकी के 22 जो है वो JEE मेन का स्कोर यूज़ कर रहे हैं एडमिशन के लिए। उसमें ये जो हमने अभी अभी PEC का डिस्कशन किया, पंजाब इंजीनियरिंग, ये भी है, ये IIIT दिल्ली वाली और बेंगलुरु वाली और हैदराबाद वाली भी है, बड़े बड़े पैकेज वाली। ये जो हमने आगे डिस्कस की वो वाली, नेताजी सुभाष वाली, इंदिरा गांधी वाली, DTU वाली, ये सब जो जामिया जो हमने आगे डिस्कशन की मोस्टली वही है। ये जो है, ये थोड़ी कॉलेजेस हमने डिस्कशन नहीं की, वो वाली है जिसमें निर्मा है, ये एवरेज पैकेज है। मैकेनिक के हिसाब से कारण, सिविल के कारण पैकेज डाउन हो जाता है, नहीं तो कंप्यूटर का तो 6 से ऊपर ही रहता है। फिर पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, फिर अमिटी है, अमृता है, ये काफ़ी सारी। ये देखो 9 लाख वाली शस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका 9 लाख से ऊपर पैकेज है। थापर है 7 लाख से ऊपर, इसका हम लोगों ने नाम भी नहीं कई बार सुना होता। इसमें इसकी टीवी में ऐड आती है अमेठी की, लवली प्रोफेशनल की, तो वो सुना है, लेकिन लवली से भी ज़्यादा पैकेज देने वाली कई कॉलेज हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ये होती है बात। अमृता भी 5.5 लाख से ऊपर आसपास पैकेज देती है। तो मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरे इंडिया का पैकेज, जो एवरेज पैकेज है, एवरेज बच्चों, अगर आप एवरेज से अच्छे बच्चे हैं उस कॉलेज में जाके, तो इसका आपका पैकेज बढ़िया है। कंप्यूटर IT में जाते हैं तो पैकेज डबल है, तो वो सब भी माइंड में रखिए। ये अगर ये 4, 5, 7 लाख दिखाता है ना, तो उसको डबल डबल करके सोचिए अगर आप कंप्यूटर में है तो ये सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। ये हो गई सारी इंडिया वाली बातें। फिर हम लोग गुजरात की थोड़ी बात करेंगे और बाद में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। राज सर तो अपने लेक्चर स्टार्ट कर ही दिए हैं, वो तो उसका जो दिन आएगा वो वीकली 2 दिन वो लेक्चर लेंगे, 3 दिन में लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के बाद में स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक बार पढ़ाई स्टार्ट हो गई, फिर नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग, कुछ महीनों तक सिर्फ ही सिर्फ पढ़ाई, फिर बाद में कुछ नहीं आएगा तो फिर एक आध लेक्चर बीच में कुछ महीनों के बाद लेंगे। लेकिन अभी एक लेक्चर बाकी है हमारा गुजरात एडमिशन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।